Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, the science teacher. In today's class, we discuss a new chapter in your NCERT book, reproduction in animals. In yesterday class, we started this chapter and we discussed about the why reproduction is important. We discuss about the two type of process. First one is life process. Okay, but reproduction is not a life process. It is not essential for animals. Okay, so why reproduction is compulsory? Why we do reproduction? Because continuation of similar kind of individual अपने similar kind of individual को birth करने के लिए and अपनी species को continue रखने के लिए animals do reproduction. Next, our new topic is mode of reproduction. Okay, the mode of reproduction, just there are two mode of modes by which animal reproduce. Two modes होते हैं जिसके थ्रू animal and plants both are reproduced. ठीक है, जैसे plants के अंदर भी हमने in class 7 we read कि in plants maybe a mode of reproduction present in asexual reproduction and sexual reproduction. Just like that in animals, two type of reproductions are here. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. Okay, first we understand about the what is the main difference between a sexual reproduction and asexual reproduction. Okay, the production of a new individual नए जीव का जो बर्थ हो रहा है, न्यू जनरेशन जो आ रही है, उसके लिए by the existing of two parent by the fusion of their gametes is called a sexual reproduction. देखिए सबसे बेसिक जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में जो डिफरेंस है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. Okay, one is male and second is female. Okay, but in asexual reproduction only one parents are involved. Maybe वो मेल हो सकता है, maybe वो फीमेल हो सकता है, कुछ भी मतलब एक ही पेरेंट जब इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से जब पार्टिसिपेट लेता है इन रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज इक्वल वर्ड asexual reproduction. In sexual reproduction we don't inside the whole definition we understand about the sexual reproduction. The basic difference between sexual and asexual reproduction is two parent involved in sexual reproduction. Okay. Now asexual reproduction में क्या होगा? एक basic definition जो है reproduction of new animal by a single parent. एक production हो रहा है new animal का by a single parent without the involvement of gametes is called the asexual reproduction. We discuss about the word of gametes. Okay. Now we move to our today topic is sexual reproduction. Okay. Try to recall रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपने रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर रीड किया था उसको थोड़ा सा वापस से अपन पढ़ते हैं. तो व्हिच यू स्टडीड इन क्लास 7 यू विल रिमेंबर द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, तो हमने जब प्लांट्स के अंदर इस चीज को रीड किया था तो हमने पढ़ा था कि एक प्लांट का देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है. व्हिच पार्ट ऑफ अ प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? आंसर इज फ्लावर. जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. इन फ्लावर वी विल डिस्कस अबाउट द सेपल, पेटल, है ना, एंथर एंड पिस्टिल. ओके, तो सेपल और पेटल तो क्या है, उसके आउटसाइड कवरिंग. ओके, एंड एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and pistil is a female reproductive organ in plants. Okay, just like that animals के अंदर भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट होते हैं. आपने थोड़ा सा याद आ रहा होगा आपको कि जब हम एंथर की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एंथर की स्ट्रक्चर इस तरीके की और वो नीचे फ्लावर के थैलेमस से जॉइन था. ओके, एंड पिस्टल फ्लावर के नीचे पिस्टल की शेप वो इस तरीके की. ये जो फ्लैट पार्ट होता है इट्स स्टिग्मा. The neck-like structure style and oval shape की जो oval shape जो होती है वो क्या है? Ovary. Okay, तो stigma, style and ovary. Anther में ये जो पूरा पार्ट होता है ये anther में. Okay, तो हम यहाँ पर बेसिक यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जैसे प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, जस्ट लाइक दैट एनिमल्स में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड ऑर्गन डिफरेंट होते हैं.
Okay, like plants and the reproductive part in animals also produce gametes. हमने उसमें रीड किया था in class 7. मैं इसको प्लांट से कंपेयर करके इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. That's here first reason is to understand very well. Okay, in the plants male gamete क्या था बेटा? Pollen grain. आपको याद होगा. I think you all are remember this pollen. एंड इन फीमेल के अंदर जो गैमेट पार्ट था वो क्या था? एग. मे बी हम उसकी जगह पर और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ओवा. ओके, तो दीज आर द गैमेट्स ऑफ इन प्लांट्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट क्या? पोलन ग्रेन. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फीमेल गैमेट क्या है? एग और ओवा. ठीक है, जस्ट लाइक दैट एनिमल्स के अंदर भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट के अंदर भी हमने रीड किया था. हियर वी रीड pollen grain and egg का फ्यूजन होता है, that form a zygote. Okay, तो एनिमल्स में भी सेम यही चीज होती है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स एंड दे फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. और वो क्या फ्यूज करके क्या फॉर्म कर देंगे? जाइगोट को. इट इज द जाइगोट व्हिच डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल. और वो जो जाइगोट है उसके अंदर डिवीजन होकर डेवलप होकर वो न्यू इंडिविजुअल जिसका भी वो जाइगोट है, डॉग का जाइगोट है डॉग बनेगा, ह्यूमन का जाइगोट होगा तो आगे डेवलप होकर ह्यूमन बनेगा. ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी? प्लांट के गैमेट्स की. ठीक है, बात आ रही है अब एनिमल्स के गैमेट्स. ओके, तो we discuss about it. This type of reproduction beginning This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called a sexual reproduction. देखिए, फ्यूजन दोनों के जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होना ही फ्यूजन वर्ड हम जो यूज करते हैं उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस होता है. बहुत न्यूक्लियस जब मैच हो जाते हैं उसी के लिए हम यूज करते हैं फ्यूजन. एक न्यू वर्ड भी यूज करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे तभी हम उसको यूज करेंगे. From the fusion of male and female gamete is called a sexual reproduction. देखिए अपन ने बात करी है कि sexual reproduction के अंदर how many parents are involved? 2 parents are involved. Okay, so male gamete and female gamete. Male gamete and female gamete. Okay. Yes. Oh, male gamete and female gamete fuse हो जाते हैं तो sexual reproduction और one ही parent involved होगा. This type of reproduction called asexual reproduction. Okay. Now we move to our male reproductive organs. In male reproductive organ, the male reproductive organ include a pair of testes. The male reproductive organ include a pair of testes, 2 sperm duct and a penis. देखिए अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जस्ट डेफिनेशन रीड करी कि भाई 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, उनके गैमेट्स फ्यूज होंगे, देन न्यू इंडिविजुअल बर्थ होगा. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ वी डिस्कस हियर फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. पहले हम ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में रीड करेंगे, देन जो गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हाउ फ्यूजन हैपन वी डिस्कस नेक्स्ट इन अ नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so here is a male reproductive organ. तो male reproductive organ है mainly इसमें it included into 3 parts. First one is testis, second one is 2 sperm duct and third one is penis. Okay, basic जो male reproductive organ के जो parts होते हैं वो ये. Okay, this one is testis. Okay, and ये आपके sperm duct है जो यहाँ से देखिए कॉइल होकर कहाँ पर पीछे की तरफ से एंटर करती है बेटा, कहाँ पर? इस जगह.
और ये जो ऊपर आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो मेंशन है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया अपना यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? जो भी यूरिन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से किडनी के थ्रू फिल्टर होने के बाद में जो यूरिन बनेगा, वो यूरिन कलेक्ट होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, नेक्स्ट ये टू पार्ट्स जो है इनको हमने बोल दिया टेस्टिस। देखिए टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस कवर होते हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ओके, वेयर इट इज प्रेजेंट, ये जो सॉरी टेस्टिस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? देखिए हमारा एब्डोमिनल कैविटी के लोअर की तरफ ये चीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि व्हाई टेस्टिस। देखिए हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, मे भी हम स्टमक की बात करते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा कोई भी पार्ट जो है बॉडी के आउटसाइड में नहीं है, लेकिन टेस्टिस जो है बॉडी के आउटसाइड क्यों होता है, इसका रीजन पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन सिर्फ इतना है कि व्हाई टेस्टिस प्रेजेंट इन आउटसाइड आवर बॉडी, बिकॉज देखिए टेस्टिस का जो वर्क होगा मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल गैमेट। तो ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमेट है वो क्या है बेटा? स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ओके, आपको बात समझ में आ रही है? क्या टेस्टिस का क्या फंक्शन हुआ? To produce sperms. Testis का function हुआ to produce sperm. Why testis outside our body? Because in production of sperm, sperm के production के लिए body temperature से 2 और 3 डिग्री temperature कम चाहिए होता है। That's why जो testis है वो body से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, मैंने जो ऊपर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसकी वर्ड है स्क्रोटम। ठीक है, अंदर इसके टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का फंक्शन आपसे पूछे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? हियर इज टू फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फर्स्ट वन इज तो हम बात कर ही रहेंगे कि प्रोड्यूस स्पर्म, एंड सेकंड वन इज जो हार्मोन्स होते हैं। देखिए फीमेल के हार्मोन्स अलग होते हैं, मेल में हार्मोन्स अलग होते हैं। तो मेल का जो हार्मोन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना या सिक्रीट करने का जो वर्क होता है वो भी किसका होता है बेटा? टेस्टिस का होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो आई थिंक आपको टेस्टिस वर्ड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है जिसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। स्क्रोटम हमारे बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट के आउटसाइड में होता है। वो होगा क्योंकि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए 2 और 3 डिग्री टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? टू स्पर्म डक्ट। टू स्पर्म डक्ट जो होती है टेस्टिस के इस पार्ट से, ये आपको लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है लेफ्ट और राइट साइड दोनों में है। तो ये स्पर्म डक्ट्स, टू स्पर्म डक्ट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ से स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो उसको लेकर कहाँ पर लेके जाएगी? फिर इस पार्ट पे लेके जाती है। ये जो मिड में पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम यूरिथ्रा। मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक कॉमन पाथ होता है जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट होते हैं। ठीक है, यूरिथ्रा एक कॉमन पाथ है जिसके अंदर से स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, देन पेनिस। पेनिस वो पार्ट हो गया कि एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन हो गया। इसका वर्क क्या है? स्पर्म को इंजेक्ट करना बॉडी के आउटसाइड। दैट्स इट। ठीक है, तो मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। अब बात आ रही है फंक्शन की टेस्टिस की। तो मिलियन ऑफ स्पर्म टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म को प्रोडक्ट करना। ठीक है, पिक्चर में ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, हम डिस्कस करेंगे अभी। थ्रू स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है स्पर्म। ईच हैज अ, उसका जो बॉडी पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट इज हेड, मिडिल पार्ट इज मिडिल पीस, एंड लास्ट टेल। स्पर्म
की जो बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्पर्म बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट इज हेड, मिडल पीस एंड टेल। ओके, and the sperm is a single cell with all the usual cell component। अब ये जो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसमें मैं ये भी कह रही हूँ कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। ये एक सिंगल सेल है। ओके, okay, here one question is what purpose does the tail in a sperm serve? स्पर्म के अंदर टेल का क्या फंक्शन है? देखिए टेल जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? टेस्टिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन कहाँ होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के किस पार्ट में होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन वहां तक जो मूव करते हुए जो स्पर्म जाएंगे उस मूवमेंट में जो हेल्प करेगी वो कौन करती है? टेल। ओके, तो नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस कितने पेयर होते हैं, सेम वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड। ये लेफ्ट साइड में है, ओके, एंड ये राइट साइड में। तो 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ठीक है, जैसे उसमें स्पर्म डक्ट काम कर रहा है, क्या टेस्टिस के से स्पर्म को ले जाकर पेनिस तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, सेम सिमिलर वर्क है सेकंड ओविडक्ट का। ओविडक्ट क्या करते हैं? ओवरी से जो ओवा रिलीज हुई होती है, ओवा क्या है? फीमेल गैमेट है। ओवरी का फंक्शन क्या होगा? जैसे टेस्टिस के मैंने फंक्शन बताया कि 2 फंक्शन थे, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टिस सेक्रेट अ मेल हार्मोन, इट इज अ टेस्टोस्टेरोन। जस्ट लाइक दैट ओवरी के भी 2 फंक्शन हुए, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। व्हाट इज अ फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा या एग, अपन दोनों टर्म यूज कर लेते हैं। सेकंड फंक्शन ओवरी का क्या होगा? फीमेल हार्मोन्स को सिक्रीट करना। फीमेल हार्मोन, फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, फीमेल में फीमेल जैसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो रिप्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बिहाफ में होते हैं। मेल के अंदर मेल जैसे जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, तो ओवरी प्रोड्यूसेस, अब ओवरी और नेक्स्ट है एक नेक्स्ट ये पेयर लाइक, ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज अ यूटेरस। ओके, The ovary produces female gamete। ओवरी जो है प्रोड्यूस करती है किसको? फीमेल गैमेट को, प्योर ओवा। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवा या एग बोल देते हैं। In human being, a single matured egg is released into the oviduct। अब ओवरीज ने क्या बनाया? ओवा, वहां से एक मैच्योर एग ट्रांसफर होगा कहाँ पर? ओविडक्ट में। ओविडक्ट का एक अदर नेम और है बेटा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब दोनों सेम चीज है। ओके, by one of the ovaries every month, uterus is the part of where development of the baby take place। uterus वो पार्ट होता है जहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल है या नया जो बेबी बर्थ लेने वाला है वो वहाँ पर डेवलप होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज a सिंगल सेल। जैसे स्पर्म के लिए हमने स्पेशल बात की थी कि स्पर्म क्या है? सिंगल सेल है। जस्ट लाइक दैट ओवम भी एक सिंगल सेल होता है। ओके, तो ये यूटेरस है, यहाँ पर बेबी डेवलप होगा। ओवरी, ओवरी के 2 फंक्शन क्लियर किए मैंने आपको। ओवरी प्रोड्यूसेस अ ओवा और एग एंड ओवरी सीक्रेट अ फीमेल हार्मोन्स, इट्स अ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओविडक्ट का फंक्शन क्या हो गया? ओविडक्ट क्या करेगी? ओवरी से जो मैच्योर ओवा है उसको अपने अंदर ट्रांसफर करती है। देन फर्टिलाइजेशन हमेशा ओविडक्ट के अंदर ही हैपन होगा। देन जो उससे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट कहाँ पर? यूटेरस के अंदर डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बर्थ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये एक ओवा जो है सिंगल सेल क्लियर हो गया। मुझे रिकॉल द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हैंस। ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट। तो ये देखिए जो ओवा की बात कर रहे हैं ये हर एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा। जैसे ऑस्ट्रिच का एग तो बहुत बड़ा होता है, हैन का एग बहुत छोटा होता है और ह्यूमंस का एग और भी स्मॉल होता है।
ठीक है। तो सबके जो साइज है वो एनिमल टू एनिमल साइज जो है वो वेरी करता है, लेकिन कितना ही बड़ा एग हो, मे बी ऑस्ट्रिच का एग, एंड का एग एंड ह्यूमन का एग, ऑल आर सिंगल सेल। ये सब क्या होते हैं? सिंगल सेल। Next point is fertilization. We discuss in our next class. Okay. I hope you understand in today's class male reproductive organ and female reproductive organ. Okay.